हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित जायसवाल फ्रॉम ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली एंड अभी मैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में हूँ और दिस इज आल्सो कॉल्ड हॉस्टल नंबर 6। मेरे साथ कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, सो आई वुड लाइक देम टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स बाय टेलिंग देयर नेम एंड द सिटी और द स्टेट दे आर फ्रॉम इन इंडिया। Hi, I'm Devpriya. I'm from Kerala. Hi, I am Riya Dhanwani from Ujjain, Madhya Pradesh. Hello, this is Ishika Singh and I am from Gujarat, Surat. Alright, so in this video we are going to discuss a lot of things about life in Samarkand State Medical University of an Indian student and also about the education, the safety for girls also. First, I'd like to start by discussing about the Freshers Party. So we have a student who got the title of Miss Freshers for the Freshers Party in 2023 by Samarkand State Medical University. So I think it would be a very good chance for us to understand about what happens in the Fresher Party and in different events also organized by this university. So why don't you start by telling us your experience of this Freshers Party and what really happens, what goes on about it? Okay, so the first party we had was the Freshers Party here, and this is organized by the DUNAFIS and the ISS members. And this actually was an opportunity for us to show our talents. We can, if you are talented in singing, we can sing. If you know dancing, we can dance. If you're having any other talents also, we can perform that. So on the basis of this talent, there'll be judges. They'll put marks for us, and there will be several rounds. There'll be first round, then the second, third, and fourth, maybe fifth round, and they'll by the performance and they'll select one Mr. Fresher and Miss Fresher, and they'll be provided the title. Okay. And we'll be having DJ. The other students can also, who's not participating, they can also enjoy the program. There'll be DJ parties. We can have food. Everything will be provided. Alright, so I think it would be a great event, like you said, to showcase your talents. Yeah. Because education, of course, is one part of a student's life, but if you are going somewhere to study for 6 years, you also have to look at the other activities also. So like you said, Freshers Party is the first party. So what all other events are being organized? Can you tell about it? यहाँ पे स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ पे समरकंद लीग हुआ था, समरकंद लीग 2023, जो कि ISS मेंबर्स ने कराई थी। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स थे, जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गए, देन क्रिकेट हो गया। एंड ऐसा नहीं था इसमें कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर ईयर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें सारे ईयर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारी ईयर की एक टीम बनती है अपनी, एंड देन वो आपस में कम्पीट करते हैं। सो यहाँ पे गर्ल्स ने बेसिकली वॉलीबॉल और बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया था, एंड ऑल्सो जो गर्ल्स हैं, जो फर्स्ट ईयर की गर्ल्स हैं, उन्होंने वॉलीबॉल में जीता था, फर्स्ट प्राइज उन्होंने जीता था। So, ये तो आपने कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में बताया, कुछ इंडोर स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज हुए थे? जी नहीं, इंडोर स्पोर्ट्स में सिर्फ टेनिस, टेबल टेनिस ये सब हुआ था। बाकी मेनली आउटडोर स्पोर्ट्स हुआ था, बिकॉज हाँ, चेस और टेबल टेनिस ये हुआ था। अच्छा। इसके अलावा बाकी आउटडोर स्पोर्ट्स ही ऑर्गेनाइज किए गए थे, बिकॉज सब लोग को ज्यादा मजा आता है आउटडोर स्पोर्ट्स में। right. सो इस वजह से यही हुआ था ज्यादातर ऑर्गेनाइज। एंड मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे वेरियस इंडियन फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। फेस्टिवल्स यहाँ पे मतलब ISS ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाए थे। लाइक जब हम यहाँ आए थे, सबसे पहला फेस्टिवल हमारा होली था। होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई थी दोनों ही हॉस्टल्स में, और फिर उसके बाद महाशिवरात्रि आई थी, उस पर लंगर भी रखा था। और महाशिवरात्रि के बाद, और ऐसा नहीं है कि जैसे ओनली मेन फेस्टिवल्स, लाइक सारे रिलीजन्स के सारे फेस्टिवल्स, लाइक South Indian festivals as well as North Indian festivals will celebrate everything. और यहाँ पे ये सब ईद भी हुई सेलिब्रेट थी, किया तो कोई भी भेदभाव नहीं है, सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी आप बाहर आओ तो इंडियन फेस्टिवल्स भी आपको सेलिब्रेट करने के लिए मिला ना। आई थिंक जैसे आपने बोला कि नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल्स भी, साउथ इंडियन फेस्टिवल्स भी होते हैं, तो आई थिंक आपने ऐसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स देखे होंगे शायद जिसके बारे में आपको पता भी ना हो। हाँ, हमने यहाँ पे लाइक उज़्बेक में न्यू ईयर होता है, तो उसे नवरूज कहते हैं। यहाँ पे पूरी सिटी बहुत अच्छे से डेकोरेट हुई थी नवरूज के वक्त, और छुट्टियां भी थी हमारी 2-3 दिन की, तो यहाँ पे उसको बहुत माना जाता है। तो नवरूज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था यहाँ पे। लाइक सब पूरा खाना पीना सब फ्री था बाहर। अच्छा। तो बहुत मजा आया था उस वक्त में। तो सारे फेस्टिवल्स अच्छे यहाँ पे, और यहाँ के पीपल भी बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली है। क्योंकि मेनली फेस्टिवल्स ही एक ऐसी चीज है जो कि ज्यादा घर की याद दिलाती है। ऐसे फील होता है कि यार हमें घर पे होना चाहिए था पेरेंट्स के साथ सब कुछ, बट यहाँ पे फैमिली की तरह सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो उतनी याद नहीं आती। जैसे कुछ लोग होते हैं जो होम सिक होते हैं, होम सिकनेस हो जाता है उन्हें, तो वो सब याद नहीं आता। लाइक फैमिली की तरह ही सब लोग रहते हैं, सारे हाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बढ़िया मजे से रहते हैं सारे। अच्छा जी। तो अब जैसे आपने बोला कि यहाँ पे लोकल्स के बारे में बोला, तो देखो जब भी कोई भी इंडिया से आते हैं, स्पेशली ऐसे गर्ल्स भी होती हैं, पेरेंट्स उनके होते हैं, तो दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपने बोला लोकल्स
बहुत यहाँ पे फ्रेंडली है। तो जो ऑब्वियसली जो सेफ्टी सिक्योरिटी का टेंशन होता है वो तो लोकल से ही होता है कि वहाँ पे लोकल्स कैसे होंगे, परेशान तो नहीं करेंगे, सिटी कैसी है होगी, सेफ होगी कि नहीं होगी। तो आपने जो ऑलमोस्ट 1 ईयर यहाँ पे अपना निकाला है, आपका फर्स्ट ईयर जैसे ओवर होने वाला है, तो हाउ हैव यू फेल्ट अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन एक्चुअली हम समरकंद? यहाँ पे लाइक 7 to 8 months है, लेकिन हमें अभी तक कोई भी सेफ्टी वाला इशू नहीं हुआ। जब हम आ रहे थे तो पेरेंट्स को भी ऐसा था कि उज्बेकिस्तान इट्स अ मुस्लिम कंट्री, बट ऐसा कुछ भी नहीं लगता हमें कि ये मुस्लिम कंट्री है। कोई लगता नहीं है। इनफैक्ट ये लोग इंडियन से बहुत प्यार करते हैं। इंडियन गाने मतलब गानों से बहुत Alright. इनको अच्छा लगता है, और मूवीज वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी लगती मैंने है। देखा है बॉलीवुड का काफी क्रेज बॉलीवुड है। का बहुत क्रेज है यहाँ पे, और मतलब सेफ्टी वाइज लाइक पुलिस वगैरह भी सही है, और यहाँ पे नाइट में ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे नाइट लाइफ इतनी नहीं है, तो फिर सेफ्टी तो वैसे ही सेफ हो गए। लड़कियों Okay. के लिए तो बेस्ट सेफ्टी है कि आपके हॉस्टल में भी टाइमिंग्स हॉस्टल वगैरह में टाइमिंग से हमारे 9:30 10 के 10 के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। ओके लाइक जब हम यहाँ आए थे ना तो 9:30 था, इनफैक्ट पहले 9:30 था, अब फिर भी थोड़ा बढ़ा दिया कि 10 इट्स ओके, उसके बाद नहीं। ओके और पुलिस स्टेशन भी हमारे हॉस्टल के बिल्कुल पास ही है, तो Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं आती सेफ्टी वाइज, और यहाँ लोकल्स पे बहुत अच्छे हैं। पूरी कंट्री में भी सीसीटीवी कैमराज आए। देन बाद में जो लॉ है, इनके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, Strict है। मतलब आप उन लॉज को तोड़ नहीं सकते, आपको उन्हें फॉलो करना है, बिकॉज हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। और इनके लॉज है जो स्ट्रिक्ट है। फिर बाद में सेफ्टी की बात करें तो कोई डरने वाली और चीज नहीं है। ट्रांसपोर्ट में भी कोई सब टेंशन अच्छा है। नहीं, मतलब जैसे कैब ड्राइवर्स वगैरह भी इतने टाइम से हम देख रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई हमें सेफ्टी तो वही विद वाइज। इन द सिटी आप ट्रैवल भी कर सकते हो, पूरी easily सिटी में, घूम भी और सकते ज्यादा हो। कॉस्टली भी नहीं है। बसेस भी चलती है, तो अगर क्लासेस में लाइक हॉस्पिटल्स में हमारी फर्स्ट ईयर की कुछ क्लासेस लगती है, फिजियोलॉजी एंड समथिंग पीडियाट्रिक्स वगैरह, तो उसमें भी कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस से 5-7 मिनट में पहुंचा देती है। तो अभी जैसा आपने बोला ट्रैवल के बारे में, तो कि विद इन द सिटी आप कर सकते हो नेविगेट बहुत इजीली। आपकी जो क्लासेस लगती हैं वो यहाँ से कितना दूर लगती हैं? यूनिवर्सिटी लगती है, यूनिवर्सिटी हॉस्टल से हमारे सिर्फ 5 मिनट का 5 रास्ता है, लाइक 500 मीटर मतलब 500 मीटर तो 5 तो मिनट्स 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। और कुछ क्लासेस हफ्ते में 2 बार हमारी हॉस्पिटल्स में भी लगती है, तो हॉस्पिटल्स में 3-3.5 किलोमीटर, ये 3 to 3.5 किलोमीटर, तो बस से 5 to 10 मिनट्स में हम आराम से पहुंच इजीली आप जाते हैं। पहुंच सकते हो। तो वो एक स्टूडेंट फ्रेंडली बजट के लिए भी आप कह सकते हो कि आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आपने ऐसे बताया अबाउट द ट्रैवल ऑल्सो, तो सिटी के बारे में भी। अच्छा, विद इन द सिटी आप जैसे 6 साल रहना, तो थोड़ा घूमने फिरने के लिए कुछ मॉल्स वगैरह हैं यहाँ पे आसपास में कुछ है? सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे गर्ल्स हॉस्टल के पीछे ही मैकॉन मॉल है, तो सबसे बेस्ट मॉल वही हमारा इधर ही है। अच्छा, और यूनिवर्सिटी से वो पास में, पास में पड़ता बिल्कुल है। पास में सारी चीजें। और Okay. खाने पीने को लेके भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी, स्पेशली यहाँ पे इंडियन स्पाइसेस वगैरह सब मिलते हैं, अच्छा, इंडियन मसाला वगैरह सब कुछ मिलता है। ओके। तो आप इंडियन मेस में अभी आपने ले इंडियन रखा मेस होगा? में Even we have Indian kitchen, like hotels, Indian restaurants, ओके, Punjab Cafe. नियर ओके, बॉयज हॉस्टल Yeah. देयर आर 2 कैफेज, इंडियन किचन एंड पंजाब कैफे, Okay. रिसेंटली खुले हैं यहाँ पे जब से इंडियन स्टूडेंट्स आए हैं। और घूमने की बात करें तो घूमने के लिए तो बहुत सारी यहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया में ताजमहल है, ये सब है, वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। एंड देन यहाँ पे माउंटेन्स भी है जहाँ पे आप ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। बहुत सुंदर माउंटेन्स है, व्यू जो है वो वहाँ का बहुत सुंदर है। अच्छा है। तो अगर ऐसे सारे एनवायरनमेंट की बात करें, सिनेरियो की बात करें, तो बहुत अच्छे सीन, बहुत अच्छे सिनेरियोज है, सब बहुत अच्छा है। अगर इस कंट्री के बारे में कुछ बोलना हो, इस सिटी के बारे में, सबसे अच्छा यहाँ का वेदर है, और मतलब नेचर बहुत अच्छा है, ग्रीनरी Okay. है एंड लाइटिंग्स वगैरह बहुत अच्छा है। हाँ, जी। ये तो आपने सही बोला। अब वेदर का आपने जब पॉइंट बोला ही है, तो यहाँ पे समर्स में कैसा टेम्परेचर रहता है और विंटर्स में मैंने सुना है बाकी बच्चों से कि ठंड ज्यादा पड़ती है, तो गर्मियों में गर्मियां भी होती है, सर्दियों में सर्दी भी होती है, तो कैसा आपका अभी जैसे अप्रैल मई इसमें क्या रहा, और ठंड आपकी कौन कौन से महीनों में रही? So when we came, it was November and it was the starting of winter. Okay. And from November, it was fine. November was fine, and December, January, it started snowing Okay. and snowfall हुई थी, and it was fine. Like it was adjustable, cold was adjustable, and we were provided heaters in hostels everywhere. And Okay. even in universities, we had Central heaters. heating system. Yeah. And now it's summer, and the temperature is around 25 to 35. उसकी ज्यादा नहीं होती है. अच्छा, And then it's fine for us. Like now, since it is summer, we have more day, like Longer very days. Yeah, हाँ. longer days. By 8 only it will get dark. ओके ओके। तो उससे भी आई थिंक कॉस्ट लाइट है तो सेफ तो रहता ही है, हाँ, बहुत। राइट? और वो भाई इंडिया जैसा ही फील होता है, क्योंकि इंडिया हाँ। में भी इतना ही टेम्परेचर होता है समर के Right. टाइम पे, एंड यहाँ पे भी इतना ही समर का टेम्परेचर होता है, तो हमें इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है कि जैसे एक्सट्रीम समर हो गया, एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, ऐसा नहीं है। लाइक
बेरेबल है, ये आप झेल सकते हैं सर। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं, बिकॉज वी हैव टच्ड अपॉन लॉट ऑफ टॉपिक्स। व्हाट अबाउट द एजुकेशन हियर, बिकॉज मैंने यहाँ पे देखा कि इंडियन टीचर्स भी काफी ज्यादा हैं। आई मीन देयर आर यूनिवर्सिटीज इन अदर कंट्रीज जहाँ 1-2 इंडियन टीचर्स हैं, फ्यू यूनिवर्सिटीज, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर में इंडियन टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा है। इंडियन, जैसे कि सर ने कहा, यहाँ पे इंडियन टीचर्स है, तो इंडियन टीचर्स है, इस वजह से वो जो लैंग्वेज बैरियर एक आता है लोकल्स के साथ, लोकल टीचर्स के साथ, वो नहीं है यहाँ पे। हाँ, वो लोकल टीचर्स आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, नो डाउट, बट स्टिल एक लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाता है। बट इंडियन टीचर्स के साथ वो लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, एंड जो हमारे डाउट्स है वो क्लास में सॉल्व हो जाते हैं। और कभी कभार डाउट्स क्लास में अगर नहीं भी सॉल्व हो तो क्लास के बाद 5-10 मिनट रुक के आप अपने डाउट्स जो है सब सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक सिस्टम है कि डेली बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाता है। डेली आप कितना पढ़ के आते हैं उस बेसिस पे मार्किंग दी जाती है, 5 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड जैसे टीचर ने कल आपको जो टॉपिक पढ़ाया, आज उस टॉपिक के बारे में टीचर पूछता है, एंड उस बेसिस पे आपको 5 में से मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके 3 आए तो इट्स गुड, 4 आए तो वेरी गुड, एंड 5 इज आउटस्टैंडिंग मार्क्स, एंड 3 to 5 के बीच में आए तो आप पास है। अगर 1 या 2 जितने मार्क्स आए आपके, तो आपका रीवर्क लगता है। रीवर्क लगता है मतलब उस टॉपिक को आपको वापस से प्रिपेयर करके उस टॉपिक के बारे में टीचर को वापस प्रिपेयर करके उनके क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो रीवर्क भी जो है वो उसी दिन या 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाता है। अगर टीचर के पास टाइम नहीं हुआ तो अगले 1-2 दिन में वो रीवर्क जो है वो क्लियर हो जाता है। एंड रीवर्क क्लियर करने का प्रोसेस इतना कोई टफ है नहीं, वो आपको बस क्या करना होता है कि एक दफ्तर होता है, दफ्तर में आपको कुछ पेजेस लिखना होता है उस टॉपिक के बारे में, जो आपने पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना होता है। एंड बाद में आप वो टीचर को सबमिट कर देंगे, एंड टीचर जो है उस टॉपिक के रिलेटेड आपको 2-3 सवाल या 5-6 सवाल पूछेगा, एंड उस बेसिस पे आपके मार्क्स लग जाते हैं। एंड यहाँ पे बहुत से सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजियोलॉजी हो गया, एनाटमी हो गया, मेडिकल केमिस्ट्री हो गया, इन सब में प्रैक्टिकल्स होते हैं। एंड 2 क्लासेस लगती हैं, पहली थियरी क्लास लगती है एंड दूसरी प्रैक्टिकल लगती है। तो थियरी क्लास में आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट क्लास में हमें शो किया जाता है। इनफैक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है कि टीचर्स जो है हमें खुद करने भी देते हैं, परफॉर्म भी करने देते हैं। जो ये सारे प्रैक्टिकल्स हो गए वो हमें परफॉर्म भी करने दिया जाता है। जस्ट लाइक 12th स्टैंडर्ड में हम लोग करते थे, 11th-12th में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते थे, वैसे यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। एनाटमी में भी बात करें तो वहाँ पे सारे स्पेसिमेंस रखे हैं, बेबी फीटस वो सब भी रखे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक एनाटमी टेबल है जिसपे जो भी इमेज है वो 3D फॉर्म में शो की जाती है फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी ऑर्गन्स, ऑफ ऑल दी मसल्स, बोन्स, इन सब के लिए। तो प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। ऑलराइट, तो ये तो आपने काफी अच्छा बताया एजुकेशन के सिस्टम के बारे में। अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट क्लासेस मिस करता है तो फिर क्या होता है? वो फिर हमारी एनबीज लगती है, लाइक एब्सेंट लग जाती है, तो उसके लिए हमें डीन ऑफिस जाना पड़ता है सबसे पहले, और डीन से परमिशन लेनी पड़ती है एनबी क्लियर करने की। और फिर मैम या सर होते हैं वो हमारा रीवर्क लेते हैं। एनबी तो क्लियर हो जाती है, लेकिन जो टॉपिक छूटा है, लाइक कुछ भी टॉपिक उस वक्त का था वो छूटा है, तो उससे क्लियर मतलब पढ़ के आना होता है, और वो सुनाओगे तभी तुम्हारे को वो आउट ऑफ 5 मार्क्स लगेंगे, उसके बिना नहीं होता। तो कोई टॉपिक छूटता नहीं है, मतलब 100% अटेंडेंस, मतलब 100% अटेंडेंस कंपलसरी, एक भी छुट्टी नहीं कर सकते। वो फिर है कि थोड़ी बहुत छुट्टी हो ही जाती है, कभी कोई बीमार है, कोई बीमार वगैरह होता है, मेडिकल प्रॉब्लम है तो फिर छुट्टी चलती है, बट नॉर्मली ऐसे छुट्टी नहीं चलेगी। ऑलराइट, तो आई थिंक आपने इस वीडियो के थ्रू काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को दे दी है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गर्ल्स, क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा कंसर्न रहता है कि हाँ जिस कंट्री में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इवन गर्ल्स को भी ये रहता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, वहां जाके कैसे आपको हॉस्टल मिलेगा, क्या मिलेगा। तो आई थिंक आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट्स को दे दी है। सो आई लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड आई लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर द इन्फॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइडेड। थैंक यू सर। थैंक यू।